Hello students and welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about process costing. This is our first part of process costing where we will understand the theoretical part of process costing, its formats and the formulas which we are going to learn. Basically, this method of costing is helpful in various industries where the actual production take time and through different processes. Basically, whenever we are talking about process costing, we need to understand that process costing is a method of costing used in industries where the material has to pass through two or more processes for being converted into a final product. So raw material is going to be converted into final product by passing on two or more process. So it is defined as a method of cost accounting whereby costs are charged to processes or operations and average over unit produced. It's simple that every process is going to be charged and a separate account for each process is opened and all expenditure pertaining to a process is charged to the process account. Every time you will get a process number 1, process number 2, whatever the name of that process, that account will be prepared. And such type of costing method is useful in manufacturing of products like steel, paper, medicine, soap, chemical, rubber, vegetable oil, paints, varnish, etc. Why? Because these all manufacturing units required step-by-step process for production, where the production process is continuous and output of one process become the input of the following processes till completion. This line is very essential, very important, that output of one process is being becomes the input of the following process till the completion. So suppose process 1, output of process 1 is input for process 2, in output of process 2 will be input of process 3. So this should be a line, because when we are starting with the raw material, after that goes to process 1 and the process 1 pass on to the process 2, process 2's output pass on to process 3, and finally we are reaching up to finished goods. This is how we can get a process. हम लोग आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे ऑयल फील्ड का, वेयर हम लोग कोकोनट ऑयल अगर बनाना चाहेंगे तो कोकोनट ऑयल बनाने के लिए हमें रॉ लगेगा कोकोनट. Raw material is a coconut, and for that we need to go with the first process. Say for example, we want to process for the coconut oil. So coconuts are our raw materials, and the first process will be like crushing. I can say crushing process. It requires to crush first. So crushing process से हमारा crude oil बनेगा. Crushing process से क्या मिलेगा? Crude oil. और उस crude oil को crushing के बाद refining process, refine करना पड़ेगा. So crushing के बाद refining process. So first will be crushing process, other will be refining process. So refined oil, first process से हमें क्या मिलेगा? Crude oil. We will get it crude oil. First process का जो outcome रहेगा, output रहेगा, that will be called as crude oil. जो crude oil second process, that is refining process में input हो जाएगा. So refining process से refined oil मिलेगा. क्या मिलेगा? Refined oil. So crushing के बाद refining, so refined oil मिलेगा. ये refined oil process 3 finishing process. So finishing में क्या होगा? Like
हम लोग बॉटल में भर देंगे, उसको बेचने के लिए तैयार करना है, हमें पैकिंग करना है, लेबलिंग करना है, everything will be done over there. So that will be your finished oil, or you can say ready to dispatch. So coconuts को, raw material को हमने प्रोसेस किया. प्रोसेस 1 was crushing oil. crushing प्रोसेस में crude oil निकला. crude oil प्रोसेस 2 फिनिशिंग प्रोसेस का इनपुट बना एंड रिफाइंड ओके फिनिशिंग के लिए गया. फिनिशिंग प्रोसेस से वो फिनिश गुड्स तैयार हो गया एंड रेडी टू डिस्पैच, और वी कैन से रेडी टू सेल. So this is how the process costing is going on. This was an example with the coconut oil. So here we are finally getting coconut oil. So coconuts to coconut oil का जो process था, process 1, 2, 3 crushing, refining, finishing. So ये हम लोगों ने देखा. Now every process, process 1, 2, 3, whatever will be the process, every process need to prepare with the account. And when we are preparing the account, when accounting comes, the matter of debit and credit comes. So we need to understand the debit side and credit side in case of process accounts. For debit side, we need to follow me, ME, and for credit side, we need to follow no, and finally T. So that means me not. We need to understand this shortcut. For process costing, we need to follow me not. MENOT. That is called me not. M stand for here. M stand for materials. Every kind of materials. Raw material, input material, direct, indirect material. E stand for all kind of expenses like wages, production overheads, and anything. So all kind of expenses. E stand for all kind of expenses. This will be your debit side. So in our process account, we are following debit side with material and all kind of expenses. And for what about N? N stand for normal loss. N stand for normal loss. Thereafter O stand for output. These are the two other columns, two other items in the process accounts credit side. So normal loss, most of the cases always, or we can say in the form of percentage, always in the form of percentage. We are getting this in the form of percentage. Normal loss in percentage. Output most of the times in the form of quantity. So that needs to be understood that when normal loss is given percentage on input, we should follow percentage on input. So percentage of input on normal loss and output as a quantity. So these two things need to be understood while dealing with the credit side of process account. So debit balances and credit balances should follow with me not, MENOT, and this T stand for tally the quantity column. T stand for tally the quantity column. So we need to follow tally the quantity column, because unless and until we are tallying the quantity column, we will not reach up to the abnormal loss or abnormal gain. Now what is the abnormal loss or abnormal gain? So we need to understand few terminologies. That terminology is required to be understood because of the process costing needs to be understood with this. First is normal loss. The normal loss which is there in your format in the form of percentage. Normally हर प्रोसेस में हम लोग जितना प्रोडक्शन में इनपुट डालने वाले हैं उसमें से कितना ऑयल निकलने वाला है, उस ऑयल से हमने कोकोनट का एग्जांपल डाला था, तो 100 किलो मैं अगर रॉ मटेरियल डालता हूं तो क्रशिंग प्रोसेस करने के बाद उससे जो क्रूड ऑयल आएगा दैट मे नॉट बी 100,
or more than 100. It will always less than 100. But up to certain extent, we need to understand how much will be the normally comes as an output. Sometimes this normal loss is understand with the different way as a output. So we need to understand that output or the input is matter. Output, input, whatever the given information, we need to understand the percentage of normal loss. Normal loss stand for which is a normal. Normal loss is which is normal. Means we can think that yes, it is unavoidable, which cannot be avoidable, which is bound to happen, जो होना ही है, हम लोग उसको रोक नहीं सकते. Normal loss which is abnormal, which is unavoidable, which is bound to happen, जो होगा ही होगा, and always valued at scrap value. उसको भंगार के भाव से हम लोग बेच सकते हैं. स्क्रैप, स्क्रैप मतलब भंगार. सो हम लोग ने जो कुछ भी अंदर डाला था उसका जो भी, फॉर एग्जांपल क्रशिंग प्रोसेस करते वक्त हमारा जो कोपरा रेसिड्यू आएगा, कोपरे का जो भी बचा हुआ पार्ट रहेगा, चौथा रहेगा, उसको हमें भंगार के भाव पे बेचना पड़ेगा. सो नॉर्मल लॉस विच इज नॉर्मल, विच इज अनअवॉइडेबल, विच इज बाउंड टू हैपन, उसको रोक नहीं सकते आप, वो होना ही है. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग अगर 100 kg कोकोनट डालेंगे तो उसका 10% लॉस होगा, मतलब 90 kg का ही आपका आउटपुट आएगा. ये नॉर्मली अज्यूम्ड है, एक्सेप्टेड है, जिसे हम लोग कोई भी रोक नहीं सकता. यस, तो दिस इज how we need to understand normal loss which is normal, which is bound to happen. Okay, so in case of normal loss we need to understand the scrap value. Very much important aspect is scrap value. The next part is abnormal loss. Now abnormal loss means what? Whenever we are thinking that 10% is a loss, जैसे कि हमने 100 किलो रॉ मटेरियल डाला तो 10 kg लॉस होगा, तो आउटकम कितना आएगा? 90 kg. लेकिन एक्चुअल में 80 kg ही आउटपुट आया. हमने सोचा था 10 किलो का लॉस होगा, जो सोचा था, जो होगा उतना होता ही है. तो हमने वो 10 किलो का लॉस जो सोच लिया था उसको अज्यूम करेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए था 90 kg, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आ गया 80 kg. इन दिस कॉन्टेक्स्ट there is a chance of abnormal loss. और वो abnormal loss क्या है? क्या abnormal loss होना चाहिए? हमने ऑलरेडी नॉर्मल के लिए सोच के रखा था, तो नॉर्मल के ऊपर ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस इज द पार्ट ऑफ abnormal loss. समझ में आ रहा है? तो which is avoidable. of course अगर आपका लॉस बढ़ रहा है तो वो लॉस क्यों हो रहा है? we need to understand that. which should not be happen, ये नहीं होना चाहिए. and valued at cost price. important wording क्या है? valued at cost price. एक फॉर्मूला के बेस पे देखिए तो एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस. जब हम लोग एक्चुअल लॉस को नॉर्मल लॉस से बड़ा अज्यूम कर लेते हैं, दैट टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल लॉस. उसका एक फॉर्मूला भी है, actual loss minus normal loss is equal to abnormal loss. actual loss is greater than normal loss. तो हमारा normal loss कितना सोचा था हमने? 10 kg होगा, 10 kg होना चाहिए, और actually loss कितना हुआ? 20 kg. that means 20 kg is greater than actual loss is greater than normal loss 10. so 20 kg actual loss minus normal loss 10 kg करेंगे तो 10 kg बचेगा, that will be abnormal loss. so we need to understand this concept that abnormal loss is over and above the normal loss. first thing which is avoidable, जिसको आप avoid कर सकते हो, शायद उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी. we need to, it should not be happen. we need to understand why this was happened, ये क्यों हुआ, एक्स्ट्रा लॉस क्यों हुआ, ये ढूंढना जरूरी है. जब हम लोग इसको ढूंढ पाएंगे, एक्चुअल लॉस में जो डिफरेंस अमाउंट है एक्स्ट्रा 10 kg का जो हमने एग्जांपल लिया था, तो वो अमाउंट हमें ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगली बार वो नहीं होना चाहिए. हो गया इस बार, ठीक है, बट कंट्रोलिंग फॉर नेक्स्ट टाइम
इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रीजन। क्या हुआ था उस वक्त, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इट माइट पॉसिबल, और उस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल हमने डाला था शायद वो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, दैट माइट पॉसिबल, और हमारा मशीनरी जो है वो शायद वीक हो गया है, वो उतना क्रश नहीं कर पाता जिससे वो आउटपुट शॉर्ट में आ गया होगा, और आपके प्रीमाइसेस में कुछ चोरी हो रही है, somehow you have employed unskilled employees, वहां पे जो इनको एम्प्लॉयड किया है वो बंदे अनस्किल्ड है, उनको वो प्रोसेस करने को नहीं आता है, तो दैट कैन बी अनदर रीजन। सो टू फाइंड आउट द एक्चुअल रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल लॉस कितना है और क्यों है। वी नीड टू फाइंड आउट द शुड फाइंड आउट reason and take corrective actions। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें उसका रीजन पता होना चाहिए, why this was happen and उसका सॉल्यूशन क्या है। The next part is abnormal gain। abnormal gain क्या होता है, which is quite opposite of abnormal loss। आपको लॉस हो गया, उसकी जगह पे गेन, गेन क्या होगा, when your actual loss is less than normal loss। say for example हम लोगों ने सोचा था कि हमारा लॉस जो है वो तो 10 kg पकड़ा था हमने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ 100 किलो डालने के बाद 95 किलो का शायद क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ऑयल आ गया। सो हमारा तो लॉस 5 किलो ही हुआ, हमने तो 10 किलो के लिए मन बना लिया था, माइंडसेट था ऑलरेडी, सो नॉर्मल उतना लॉस था। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपका नॉर्मल लॉस इज ग्रेटर देन एक्चुअल लॉस, तो नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू एबनॉर्मल गेन। जब हम लोग ये टैली द क्वांटिटी कॉलम करते हैं देन वी केम टू नो दैट वेदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस कब पॉसिबल होता है, जब हमारा इनपुट और आउटपुट इसके बीच का डिफरेंस अगर नॉर्मल लॉस से ज्यादा है देन इट इज योर एबनॉर्मल लॉस। और इनपुट और आउटपुट में आउटपुट और नॉर्मल लॉस ज्यादा होगा इनपुट से, तो ऐसे केसेस में एबनॉर्मल गेन होगा। सो एबनॉर्मल गेन अगेन वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। इसमें भी कभी कभी आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और क्या ये कंटिन्यूसली हो सकता है, कि हमने जो 10% नॉर्मल लॉस अज्यूम्ड किया है वो क्या शायद हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। If yes, then very good, we should go for it। So whenever we are thinking about quantity, we need to understand the concept of normal loss, abnormal loss and abnormal gain, because these things are having something to calculate, like normal loss is valued at scrap value, abnormal loss and abnormal gain are valued at cost price। After this we need to understand the cost price, that is called CPU, the concept of cost per unit, in short CPU। so we need to understand the concept of CPU, cost per unit। so how we are calculating this cost per unit, the formula will be total cost means what, the total of your debit side, आपके प्रोसेस अकाउंट का डेबिट साइड में जो टोटल कॉस्ट है, क्योंकि डेबिट में हमने क्या लिखा, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड मटेरियल। सो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी, total cost minus scrap value of input quantity upon
we need to find out upon total इनपुट क्वांटिटी। एक सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट को हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन कौन से कॉस्ट को? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप में भंगार में जितना भी आपको पैसा रिकवर हुआ वो माइनस करके आपको मिलेगा वो टोटल कॉस्ट मिलेगा। सो टोटल इनपुट क्वांटिटी, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। So we need to understand cost per unit CPU is equal to total cost minus scrap value of input quantity upon total input quantity minus quantity of normal loss। ये कौन सा चीज हमें कहाँ पे मिलेगा? Total cost is your debit balance, debit side of your process account, and scrap value of input quantity हम लोगों को उसका क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड करके जो भी प्राइस था स्क्रैप वैल्यू उससे अमाउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट हम लोग सेट ऑफ करेंगे तो हमें एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉलो द रेवेन्यू कंसेप्ट। हमारा एक्चुअल में जितना भी कॉस्ट आ रहा है उसके सामने का इनकम हम लोग सेट ऑफ मारेंगे, माइनस करेंगे तो लॉस मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा। उस कॉस्ट को टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। जब हम लोग इनपुट क्वांटिटी में से, टोटल इनपुट क्वांटिटी में से जब हम लोग क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस लेस करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, विच इज वेरी सिंपल। सीधा भाषा में बात करें तो आउटपुट से डिवाइड करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। एंड कॉस्ट पर यूनिट का बेसिक यूज होता है हमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते वक्त मल्टीप्लाइड करने के लिए। बहुत बार प्रॉब्लम में स्क्रैप वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन रहेगा तो हम लोग नॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाइड करेंगे। सो जब भी हम लोग कोई प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग वन प्रोसेस अकाउंट, से प्रोसेस वन अकाउंट। सो प्रोसेस वन अकाउंट में मेरे कॉलम्स कौन से रहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी पर्टिकुलर्स, thereafter quantity and amount। हमारे प्रोसेस में हमने कितना क्वांटिटी इनपुट किया है और उसका वैल्यू क्या था। सो हमारा प्रोसेस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है, ये जो प्रोसेस अकाउंट रहेगा उसके डेबिट में और उसके क्रेडिट में हम लोग कौन से कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। It will be like this. So quantity, amount ये हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉलम्स रहते हैं। Say if I am doing it with all borders, so this kind of process account will be prepared. उसके डेबिट में हम लोग स्टार्ट कर देंगे टू मटेरियल्स इंट्रोड्यूस। तो बहुत बार क्वांटिटी में मटेरियल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, से so material, when I am talking about material introduce, मैं यहाँ पे एक अमाउंट ले लेता हूं। सपोज इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, एक हम लोग रैंडम इलस्ट्रेशन अज्यूम कर रहे हैं। मटेरियल इंट्रोड्यूस से 1000 kg, सो 1000 kg में इनपुट कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी को इधर स्पेसिफाइड करता हूं इन द फॉर्म ऑफ kg, सो नो नीड टू राइट ओवर हियर। सो 1000 kg का मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहा है और जिसका पर किलो एट द रेट ऑफ 20 है। हमने क्या अज्यूम किया?
पर किलो 20 रुपीज रेट पकड़ा, सो 20,000 का अमाउंट बनेगा। सो अमाउंट के कॉलम में 20,000 इज एज अ मटेरियल इंट्रोड्यूस। मटेरियल के बाद टू इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके लिए बोला ये 3,000 का अमाउंट पकड़ लेते हैं। Thereafter wages, wages 5,000 रुपीज का खर्चा हो गया। Then to production overheads, आपको सामने से प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2,000 बोल दिया। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो दीज आर ऑल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सो एवरीथिंग। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 3 एक्सपेंसेस लिए, वन इज मटेरियल इंट्रोड्यूस। सो दिस इज योर मी, ये आपका एम है, ये सारे ई है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मी, जो हमने डेबिट साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन नॉट, नॉट में नॉर्मल लॉस, बाय क्रेडिट साइड में बाय लिखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस, और आपको नॉर्मल लॉस बोला है 10%। एवरीथिंग इज अस्यूम्ड एंड स्क्रैप वैल्यू इज गिवन रुपीज ₹1 per kg. So everything is given. So 10% of normal loss हमेशा किसका होता है? 10% of input quantity. तो हमारा input quantity कितना है? 1000. 1000 का 10% कितना आएगा? 100. So हमारा quantity 100 रहेगा। So 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, amount will be 100. So this is how we are following. So मी नॉट में से n आपको मिल गया, बराबर है, that is normal loss. O, जब भी प्रॉब्लम में थोड़ा जाके नीचे लिखा है, O स्टैंड फॉर आउटपुट, और हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम लोगों को आउटपुट 850 यूनिट्स बोल दिया। हम लोगों को आउटपुट कितना बोला? 850 यूनिट्स बोल दिया सामने से, हमें और कुछ नहीं करना है। इट इज गिवन, आउटपुट में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इट वाज गिवन। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये मेरा ओ है, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, एंड एवरीथिंग इज गिवन। डेबिट साइड में मी है, क्रेडिट साइड में नो है, देन go for T, or T stand for tally the quantity column, tally the quantity column, only quantity. तो let's see डेबिट साइड का क्वांटिटी का कॉलम का अमाउंट कितना है और क्रेडिट साइड का क्वांटिटी का कॉलम का अमाउंट कितना है। इफ यू आर मेक अ कास्टिंग, टोटलिंग करेंगे तो हमें मिलेगा डेबिट साइड 1000 है, विच इज क्वाइट हायर, बराबर है। डेबिट साइड में 1000 क्वांटिटी है, जिसको हम लोग अज्यूम करेंगे वही बड़ा है। सो ये 1000 को हम लोग ये 1000 इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है? यहाँ पे 1000 के अगेंस्ट कितना अमाउंट है? ये 1000 में से 850 एंड 100 दोनों को माइनस करेंगे। 850 और 100 का डिफरेंस कितना आता है? दैट विल बी 50। यस और नो? मैंने उसको स्पेशल बॉक्स किया है बिकॉज दिस अमाउंट, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1000 आउटपुट था, उसके सामने 100 अगर नॉर्मल लॉस था तो आउटपुट 900 आना चाहिए था। आउटपुट हमारा 900 नहीं आके 850 आया, दैट मीन्स व्हाट?
50 का डिफरेंस है और ये 50 का डिफरेंस क्या हुआ है, लॉस हुआ है, सो इट शुड बी कंसिडर्ड एज बाय एबनॉर्मल लॉस एंड दिस शुड बी वैल्यूड एट सीपीयू। अभी सीपीयू किधर है, ओके दैट नीड्स टू कैलकुलेट। अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे हमारे आउटपुट का क्वांटिटी लिखा हमने और उस क्वांटिटी के बाजू में हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, बराबर है। सो वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। तो जब भी हम लोग इतना फॉर्मूला कंप्लीट करें सो वी शुड गो फॉर कॉस्ट पर यूनिट। अभी वो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, फॉर कॉस्ट पर यूनिट वी नीड टू फॉलो द टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल क्वांटिटी। अभी ये टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे देन यू विल गेट इट। कितना है ये 20 प्लस 23 28 30, सो डेबिट साइड का टोटल 30,000 हो सकता है। डेबिट साइड का टोटल कितना हो सकता है 30,000। सो अगर ये 30,000 हो जाता है तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, तो दैट इज योर टोटल कॉस्ट 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, 100 रुपए का स्क्रैप वैल्यू है, सो 30,000 माइनस स्क्रैप बराबर है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग अहेड। टोटल इनपुट क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने डाला था 1000 केजी और नॉर्मल लॉस कितना था, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस 100 था, सो 30,000 minus 100 that will be, थोड़ा यही पे एक ही स्क्रीन पे कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 29,900, 30,000 में से 100 लेस करेंगे तो और ये लेस करेंगे तो 900, सो 29,900 अपॉन 900 का जो भी फॉर्मूला आएगा we need to calculate 29,900 divided by only 900 as per formula 33.22222222 33.222222 ये आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू, जिससे हम लोग 33.22 लिखने के लिए मैं 22 दो ही बार लिख रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाइड करते वक्त हम लोग पूरा अमाउंट से मल्टीप्लाइड करेंगे, दैट 33.222 मल्टीप्लाइड बाय 50। हम लोग 50 को मल्टीप्लाइड बाय 33.222 as much as possible, so 1661 यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1661 ले लेंगे या 1660 भी आ जाते कभी कभी हम लोग फॉलो करेंगे तो 1661 हमारा स्क्रैप सॉरी एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट की वजह से आया हुआ अमाउंट है। अभी हमने कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे स्क्रैप पर यूज किया। हमने जो फॉर्मूला बेस्ड चीजें सीखी है कि हमारा नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे, एबनॉर्मल लॉस सीपीयू पे, ऐसा ही वैल्यू होना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। देन ये सीपीयू के बेसिस पे हमने जो फाइंड आउट किया, हम लोग आउटपुट को भी वैल्यू कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है, ये 30,000 में से ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे। सपोज इफ इट वाज 30,000 माइनस 16,061 माइनस 100, सो एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है 28,239, सो 28,239 अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, सपोज दिस 28,239 डिवाइड बाय 850 करेंगे, you will definitely get the same CPU which was there 33.222. Okay, so this is how we are going to calculate the process costing. For each and every process we need to follow the steps. So process costing is very simple, based on one formula that is called me naught. We need to follow that. In coming lectures we are going to solve with illustration much more. Okay, till then, thank you.
we learn about the process costing theory. In next lecture, we will understand how to solve that question in practical manner, how to demonstrate that theory in practice. So we will learn at that part in next